So, hi guys, a very good evening to all of you, and welcome to this webinar. And thanks for joining me. Probably after so long, I am live on this session, right? So, okay, so we'll be talking about the topic as you know that we need to talk about the price action, right? So, I'll discuss some of the key areas that you need to look for. Actually, there is no secret actually. जब secrets की बात करते हैं रात को trading में, we all try to find some of the holy grails, right? But actually, ऐसा कोई secret होता नहीं है. You just need to, you need to understand few key points, okay? Which basically we need to understand, right? Okay, that's the only thing, okay? So कुछ key points पे discussion करेंगे over the period of next 30-40 minutes, right? Okay, and we'll be trying. So I'll be talking in the both the languages, right? Okay, Hindi, English, thoda thoda, right? Okay, and we'll see what are the key points that we need to look for before trading using the price actions, right? Okay, so price actions के बहुत सारे तरीके होते हैं price action trade करने के. So what I'll do is I'll just give you few key points, right? Okay, uh, so let me just share my screen. Okay, just just a second, guys. Okay, we'll start. Okay, fine. So the first thing we need to talk about the price actions, right? We'll be talking about the price action today. So क्या चीज बात करना होता है बेसिकली इसके अंदर we can see that. So first of all, people talk about the market trends. Okay, so we'll talk about the trend also. The first is trend, and we'll talk about the few indicators, okay, and then derivative data. What are the derivative data that we can see? Okay, which will help us to identify the trend. Okay. Second, within that thing, we need to understand that because we are targeting the price action, it is very essential कि हम reversals को understand करें. Okay. So mostly we'll talk about the key data points and mostly candlesticks हमें आना चाहिए इसके अंदर. Okay, because if you're doing the even a positional or intraday, we need to understand the reversal points. Okay. With this, we need to understand the entry and exit points. Okay. So that is what we need to understand simultaneously. Okay. Then fourth one is position sizing is one of the important part. Okay. कि पोजीशन का साइज कितना रखना चाहिए जब हम इंट्राडे कर रहे हैं या फिर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से we need to understand this thing. And then last one is not least I would say, but yes, risk management. Right. This is what needs, right? Okay, so I think we are aware of what we need to discuss. Okay, trends के ऊपर बात करेंगे तो using the indicators, few of the indicators I'll talk about. Okay, then a few key data points that I'll talk about from the derivatives. Okay, using the concept also, and then probably we'll see uh, how can we use the reversal parts. You can see the reversals using the candlesticks, right? Okay, then we'll try to see entry and exit, position sizing, and risk management. We'll talk about these 5 points. Okay, so first trend. Okay, the first one is talking about the trend. So probably you guys might be aware of this whenever we take, if you even read, अगर आप कोई भी टेक्निकल का बुक या फिर कुछ भी ऐसा रीड करते हैं तो वहां पे हर जगह लिखा होता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? तो लॉजिक भी सही है कि वी आल्सो शुड बी ट्रेडिंग इन द ट्रेंड. अगेंस्ट द ट्रेंड करेंगे तो विल डेफिनेटली ब्लो अप आवर अकाउंट, राइट? तो ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना इज ऑलवेज गुड, बट हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी द टफेस्ट टास्क. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ सम ऑफ द इंडिकेटर्स, राइट? जरूरी नहीं है कि सारे ही हमें यूज कर देना, बट फ्यू ऑफ द इंडिकेटर्स वी कैन यूज, जैसा कि सिंपली फर्स्ट थिंग जैसा लोग यूज करते हैं एमएज, ओके, दैट मीन्स मूविंग एवरेज। सी क्या होता है ना कि मोस्टली वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in specifically forecasting the market, but market forecasting should be least of your time. Okay, it should take least of your time, right? तो मूविंग एवरेजेस या फिर हम कोई ऐसे इंडिकेटर्स है जैसे हम लोग एमएसीडी यूज करते हैं, ओके, देन वी कैन यूज सुपर ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स, आई एम जस्ट राइटिंग सम ऑफ दिस व्हिच आई कैन रिमेंबर। ओके, सुपर ट्रेंड हो गया, एंड देन some people do use RSI also, right? And then we have probably Bollinger Band, right? Finding the breakouts, ADX, right? Okay. So just few of them. This is the technical indicators, right? And then from derivatives, we can see volatility index, right? या IVs को check कर सकते हैं हम लोग, right? Then we can see PCR, put call ratio, okay? And then we can see the built up, okay? Built ups, then open interest. So these are the few of the tools which basically help you to identify the trend. तो अगर मैं बैठने बात करूं इन सब के ऊपर ही तो 2 घंटा इसी में लग जाएगा, राइट? ओके, सो विल टॉक अबाउट शॉर्ट इन एवरी ऑफ दीज इंडिकेटर्स, राइट? ओके, थोड़ा सबके ऊपर बात करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन, राइट? ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन है, ओके, फाइन। सो लेट्स ओपन द चार्ट। First of all, okay, so let me just plot a moving average. So why I'm doing this? Just to explain you what could be the expected trend of the market, right? Okay, so 20 पीरियड्स का लेट्स से अज्यूमिंग करते हुए मैंने 20 पीरियड का एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया, ठीक है? जनरली क्या होता है कि मूविंग एवरेज सिंपली डिफाइंस दी मार्केट मूवमेंट, ओके? तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इफ यू जस्ट सी हियर मार्केट क्रॉसेस द मूविंग एवरेज समवेयर हियर एंड इट वेंट अप, राइट? सम कंसोलिडेशन, इट फॉल, इट केम बिलो दिस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर गया, देन अगेन वी हैड अ ट्रेंड, इट वाज ट्रेडिंग बिलो दिस थ्रू आउट द टाइम। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, राइट? सम पीपल डू ड्रॉ ट्रेंड लाइन आल्सो, तो मूविंग एवरेजेस इज जस्ट अ स्मूथन लाइन, और अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यू कैन इवन सी दैट आल्सो, राइट? तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट यहाँ पे आज किया है, राइट? ओके, सो लुकिंग एट दिस मूविंग एवरेजेस के हिसाब से मार्केट में बुलिश ट्रेंड लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने मूविंग एवरेज को आज क्लोज कर दिया उसके ऊपर, राइट? लुक्स लाइक अ बुलिश ट्रेंड एक्टिविटी। सो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मुझे पता है यहाँ से कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो सिंपल आई कैन यू नो आई कैन बाय दी बॉटम्स बेसिकली। तो बॉटम्स का मतलब मार्केट अगर इंट्राडे में कभी भी, तो हम क्या करेंगे इसमें शॉर्ट्स वाले ट्रेड नहीं लेंगे अब, जब तक मार्केट डेली ट्रेंड में या डेली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल ऑलवेज टेक अ लॉन्ग ट्रेड इंट्राडे पे के अंदर भी। इंट्राडे में जब जब मार्केट डिप लेगा, कहीं से उसका रिवर्सल ढूंढ पाएंगे हम, तो व्हाट विल डू, विल यूज दैट एज अ सिग्नल टू टेक अ ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, राइट? हमेशा बड़ा ट्रेंड हमें अपने माइंड में रखना होता है, जिससे कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स ले सके। बिगर ट्रेंड इज इन ऑन अगर बड़ा ट्रेंड आपका बुलिश है, तो छोटे ट्रेंड में भी आप क्या करोगे, मार्केट पे बाय का ट्रेड ही लोगे व्हेन मार्केट इज शोइंग अ रिवर्सल। तो रिवर्सल्स की हम बात करेंगे, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो पहला चीज होता है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रेंड आपने कैसे देखा, एक मूविंग एवरेज का प्लॉट कर दिया, ओके? साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लॉट अनदर मूविंग एवरेज। सो देयर आर वेज जहां पर आप यू नो डबल मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट चेंज इट टू सम अदर, राइट? 60 लेट्स से,
मैंने 60 का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया। अब इसमें what we do is when we have a two moving averages, we'll wait for the these two lines to cross each other. मतलब अब यहाँ पे नीला वाला लाइन जो आपका है, राइट, ओके, विच इज ट्रेडिंग एट 17,921, और ऑरेंज वाला लाइन है जो 18,100 18,011 पे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता, देर इज नो ट्रेंड, सो देर इज अ डिफरेंट वे। ओके, अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दैट्स बिकम सब्जेक्टिव फॉर ऑल द पीपल हु ट्रेड। तो ये आपको डिसाइड करना है कैसे यूज करना है, राइट। कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रेंड आप यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टू डू दिस, राइट। ओके, तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स आप यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, जस्ट टू हैव अ सम आइडिया अबाउट द ट्रेंड। कोई स्पेसिफिकली बहुत बड़ा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है इसके अंदर, राइट। ओके, दैट इज फन थिंग। देन वी कैन यूज MACD, राइट। ओके, तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, राइट। ओके, सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। MACD को यूज करने के लिए यू कैन सिंपली सी दैट कि जीरो सेंटर्ड लाइन इंडिकेटर है ये। बाय द टाइम मार्केट इज, दिस ब्लू लाइन इज अबव द जीरो लाइन, इट्स अ ट्रेंड, राइट। ओके, तब तक ट्रेंड नहीं स्टार्ट होता। तो सी, सम इंडिकेटर्स विल गिव यू अ वेरी अर्ली एंट्री, सम इंडिकेटर्स विल गिव यू अ बट लेट एंट्री, राइट। ओके, तो इसलिए प्राइस से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप अगर आज देखोगे तो प्राइस को देख करके लग रहा है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, तो एज सुन एज द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन, यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग दैट ये इंडिकेटर्स भी वर्कआउट करना शुरू करेगी। तो प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन एवर यू सी द मार्केट। ओके, तो हो सकता है MACD से लैगिंग इंडिकेटर लैग करता है, मूविंग एवरेज भी लैग करता है। ओके, सो इस लैगिंग की वजह से इसमें सिग्नल्स लेट आते, राइट। बट यहाँ से हमको टेक्निकल चार्ट देख करके भी पता चल रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड इज देयर, राइट। ओके, देन पीपल यूज सुपर ट्रेंड, जो जो मैंने नाम लिखे थे, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। सुपर ट्रेंड के हिसाब से तो अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेंड में जाएगा, तो नो ऑफ यूज, राइट। ओके, देन पीपल यूज RSI। ओके, तो लॉजिकली RSI gives you a good signal when it is trading above 60, right? Okay, तो 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो it's a kind of a bullish trade, right? Okay, so this become again a very subjective way to use the RSI, right? Okay, so there are a very big and you can see बहुत ज्यादा कंटेंट है RSI के ऊपर इंटरनेट पे, you can go and read it, but सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि RSI इज ऑसिलेटर, राइट। ओके, तो जब हमें उसका फेलियर स्ट्रेट करना है, मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट 60s के 70s से नीचे सेल करता है, 30 से ऊपर बाय करता है, राइट, दैट इज व्हाट इट गिव्स यू एज अ ट्रेड, राइट। बट 70 के ऊपर अगर बहुत देर तक रहेगा तो इट्स अ ट्रेंड, राइट। तो दैट्स अ फेलियर फॉर द शॉर्ट ट्रेड। तो जब जब वो 60 के आसपास से आएगा वहां से इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेड, राइट, पीपल यूज इट इन दिस वे। ओके, नॉट स्पेसिफिकली दैट यू आल्सो हैव टू डू दिस, ओके, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इससे सब इनमें से सबसे इजी होता है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ADX यूज कर सकते हैं। ओके, तो ADX का अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि 20 के ऊपर अगर ADX है, ओके, ADX का लाइन जो है 20 के ऊपर है, तो इट्स अ बुलिश ट्रेंड। ओके, और इट्स अ बेरिश ट्रेंड, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, इट्स गोइंग टू वर्क इन दैट वे दैट मार्केट ट्रेंडिंग है। बट अगर अभी हम इसका वैल्यू देखेंगे तो इट्स ट्रेडिंग अराउंड 16, राइट। तो इसके हिसाब से अभी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं, बट अब हम यहाँ पे देखेंगे when started moving above 20 we have a good move, okay, और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो when market started moving up so we have a good move after that, right? Okay, so just a trend identification will help you। जैसे अगर हम इसको ही आइडेंटिफाई करना है तो हम we can see even a smaller time frame, right? स्मॉलर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 20 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इट इज मूविंग अप, राइट। तो बड़ा ट्रेंड अगर बुलिश हो रहा है तो शॉर्टर ट्रेंड में ADX ने बाय दे दिया, 20 के ऊपर ही घूम रहा है एंड स्लोपिंग अपवर्ड, तो दिस कुड बी अ गुड मूव, राइट। ओके, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हो सकता है, राइट। So anything what you need to. Okay. So these are the few indicators जो हमने discuss किए. Moving average could be the easiest one. Okay. ADX could be one of the indicator which can help you, right? तो idea ये है कि कुछ भी use करिए. Okay. Anything you use, but you need to have a clear understanding कि इसी को follow करना है and this could be the this going to help you
एज ए इंडिकेटर, राइट? ओके, कुछ भी मतलब एनीथिंग, राइट? ओके, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वन ऑफ द इंडिकेटर। एक टेक्निकल इंडिकेटर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर पाओ कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, क्या डायरेक्शन है मार्केट, राइट? ओके, दैट इज वन थिंग। डेरिवेटिव डेटा का यूज करके हम देखें तो इफ यू कैन यूज दिस एज अ कुड बी अ साइन, तो एक चीज होता है, हम सबसे पहले हम वोलेटिलिटी इंडेक्स देख सकते हैं। ओके, वोलेटिलिटी इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट इज मूविंग अप, सो ये चीज है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और वोलेटिलिटी आपका फॉल हो रहा है, राइट? यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, विक्स ऊपर बढ़ा है तो मार्केट नीचे गिरा है, राइट? ओके, सो इट्स काइंड ऑफ दिस इज इट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो प्राइस और इंडिया विक्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, इफ द मार्केट हैज टू मूव अप देन वोलेटिलिटी हैज टू फॉल, एंड सी आज भी यही हुआ है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया तो वोलेटिलिटी एक्चुअली वेंट डाउन। So as soon as the market keep on moving, volatility will keep on falling, right? Okay. So that is one thing. या फिर आप किसी भी स्टॉक का आईवी चेक कर सकते हो, दैट इज व्हाट सिंपली यू कैन डू, राइट? तो एक अंडरस्टैंडिंग छोटा सा होना चाहिए कि व्हाट वोलेटिलिटी इज डूइंग विद दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ऐसा है तो आप किसी भी स्टॉक का आईवी चेक कर सकते हो, राइट? विल ऑलवेज हैव दैट रिलेशनशिप। जस्ट ओके, फाइन। नाउ यू कैन सी, अभी हम इसमें किसी स्टॉक का वो लगा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने भारतीय एयरटेल लगाया या एक्सिस बैंक लगाया। ओके, ओके, अब एक्सिस बैंक का अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, कहीं पे अगर कोई इवेंट होता है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रीजन बीइंग आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इतना सारा नहीं देखना है, पहली चीज। ओके, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर। इनमें से कोई भी एक दो चीजें आपके नजर में होनी चाहिए जिसपे आपकी पकड़ अच्छी है। ओके, फाइन। ये देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है कि इसका आईवीपी लोअर लेवल पे है, दैट मींस वोलेटिलिटी इज लाइकली टू इंक्रीज, राइट? ओके, उस हिसाब से आप इसका ट्रेड बना सकते हैं, राइट? ओके, दैट इज वन थिंग। देन वी हैव अ पीसीआर, राइट? ओके, पुट कॉल रेशियो। ओके, सो दिस इज यू कैन यूज द चार्ट ऑफ दिस। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखते हैं, जैसे पीसीआर और निफ्टी का रिलेशनशिप क्या है? इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट? ओके, फाइन। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? सी, अगर मैं एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर बताऊं पीसीआर के साथ, जस्ट डेरिवेटिव डेटा पे थोड़ा सा फोकस करूंगा मैं, जस्ट टू सी दिस। ओके, बेसिकली क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट पीसीआर, राइट? तो पुट कॉल रेशियो होता है पुट ओ आई डिवाइडेड बाय कॉल ओ आई, ठीक है? लेट्स से दिस इज 1 लाख, ऑल्सो 1 लाख, okay, which comes out to be 1, the ratio is 1. What happened, let's say ये पुट कॉल रेशियो, जो कॉल पुट का ओपन रेशियो हो गया 120, this comes still be this thing value, this will 1.2, right? तो अब ये क्या हुआ, रेशियो यहाँ से यहाँ बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट किसका बढ़ा? पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स पुट की तरफ से ज्यादा हो गए। हम इसको सेलर के परस्पेक्टिव से ही देखते हैं। ओके, तो अगर पुट सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वो वैल्यू 1 लाख की थी और नीचे वाली वैल्यू कम हो गई, अगेन दिस वैल्यू विल इंक्रीज, आपका रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट सेम है और नीचे वाला वैल्यू 80,000 हो गया, स्टिल ये डायरेक्शन हमको ऊपर की तरफ मिलेगा। तो एनी हाउ इफ दिस रेशियो इंक्रीजेस, मार्केट हैज टू गो अप, तो दैट मीन्स यहाँ से सिंपल सा पता चलता है, लेट्स से दिस ओ आई इंक्रीजेस टू लेट्स से 1.5, 1.5 लाख हो गया, राइट? और यहाँ पे 1 लाख हो गया मान लीजिए, ठीक है? सो दिस रेशियो विल बिकम 1.5, तो पुट की साइड में पोजीशन ज्यादा बन रही है,
right? So eventually what happens if this market moves up, PCR is also likely to move up. So they have a positive relationship. और अगर उल्टा हो जाएगा तो this will fall and this will also fall, right? तो वही ये चार्ट आपको शो करता है यहाँ पर, ओके? जो चार्ट आप देख रहे हो पीसीआर का, उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलता है. डोंट ट्राई टू यूज इट इन इंट्राडे, ओके? इंट्राडे में आपको उसको यूज करने का जरूरत नहीं है. सिंपल आप इसको इतना भी देखेंगे तो चलेगा, राइट? ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पीसीआर हो गया. देन हम बिल्टअप देख सकते हैं. तो बिल्टअप आपको एक थोड़ा हेल्प करता है जहां पर मार्केट देखने में. ओके, लेट्स सी इफ आई कैन यूज एप्लीकेशन हियर. ओके, ओके. तो इफ आई जस्ट ओपन अ बिल्टअप यहाँ पर. नहीं, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? दीज आर द फ्यू इंडिकेटर्स. आपको सिर्फ एक आइडिया लगाना है. अभी हम पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग, ओके? सिर्फ आपको पहले उसकी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या माइंड में होना चाहिए हमारे. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? सो हम क्या करते हैं, लेट्स. सो हम वो स्टॉक्स देख लेते हैं जिनका ट्रेंड बुलिश है. तो हम क्या करते हैं, ये यू गाइस नो दिस, ओके? 2014 का हम इसमें यूज करते हैं. अब ये देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर, एल्केम, ब्रिटानिया, कोफोर्ज, क्यूमेंस इंडिया, ये सारे स्टॉक बुलिश है. अब देखेंगे क्यों? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल जिसके अंदर भी होता है वो स्टॉक बुलिश है. सीरियस. अब क्यूमेंस का चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पिछले कुछ दिनों से इसमें बाइंग का पोजीशन ही बन रहा है. एंड देन वी हैव अनवाइंडिंग एंड देन स्टॉक अगेन मूव्ड अप. तो इसका साइकिल पिछले 20 दिनों के अंदर मोस्टली लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग ही है. दैट मीन्स द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द क्यूमेंस इज पॉजिटिव, राइट? ओके. सेम चीज अगर हम यहाँ पर देखें, यू कैन सी एम फाइनेंस, यू कैन सी मनापुरम में अभी तो नहीं है, बट recent, I'm talking about very recent. Dalmia Bharat, okay, looks fine. Okay, so you see, डालमिया भारत में भी आप देखोगे ना. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अगर आप डालमिया भारत का मूव देखोगे यहाँ से, तो इट वाज अपसाइड, देन इट केम डाउन, अगेन इट वेंट फॉर 3 days अप. टी 2 दिन यहाँ पे नीचे आया, दैट्स अ प्रॉफिट बुकिंग. अगेन टुडे इट गिव मी रिवर्सल. ओवरऑल ट्रेंड में डालमिया भारत का ट्रेंड भी बुलिश हो चुका है यहाँ से. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि कुछ भी डेटा यूज करिए, बिल्टअप डेटा यूज करिए. बिल्टअप से तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज द ट्रेंड, ओके? तो any of the indicator and one derivative data you need to understand to have a at least clear picture in the mind कि market का trend क्या है. I hope that makes sense, right? Okay, fine, fine, okay. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. तो बेसिक पहले पॉइंट के अंदर मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था सर कि मार्केट की ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम इसके अंदर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमेशा, ओके? तो कुछ भी यूज करिए, एनीथिंग, यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑन दैट थिंग, ओके? RSI, Bollinger Band, ADX, right? Super trend, MACD, MACD, या moving average, anything, right? All will work out. साथ में एक डेरिवेटिव डेटा आना चाहिए, जैसे बिल्टअप देख लिया, पुट कॉल रेशियो देख लिया. तो इससे हमें क्लियर पिक्चर लग जाती है कि बड़ा ट्रेंड क्या है. दैट्स ऑल, ओके? So if we have a clear picture about what is a bigger trend, then we can talk about the second point, okay? That is the reversals. That means, what does that mean? कि मान लीजिए बड़ा ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है, यही है, ओके? दिस इज अ बिग ट्रेंड, दिस इज अ डाउन ट्रेंड. तो अगर मुझे आइडेंटिफिकेशन है कि द लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज बुलिश, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट मुझे रिवर्सल्स तो जरूर देगा, राइट? या फिर अगर बड़ा ट्रेंड बुलिश है, तो इंटरडे में जब मार्केट मूव करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं से आई विल डेफिनेटली हैव अ रिवर्सल्स, राइट? ओके. तो रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड पॉइंट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट हियर इज द रिवर्सल्स, ओके? तो कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करना. तो रिवर्सल्स के अंदर क्यों रिवर्सल जानना जरूरी है? पहली कंडीशन, अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, सेकंड बेरिश है, और साइडवेज है, ठीक है? प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे अच्छी ट्रेडिंग किस में होती है अगर आप बताएंगे? आई वुड से यू कैन ट्रेड इट एनी ऑफ दीज मार्केट्स.
इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस, इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइस, आप कोई भी मार्केट ट्रेड कर सकते हो उससे। ओके, सो बेसिकली हमको क्या करना है, रिवर्सल ढूंढना आना चाहिए। ओके, तो रिवर्सल्स या फिर कहीं से ब्रेकआउट ही मिल जाए, तो जनरली हम पहले रिवर्सल्स की बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, वी प्लॉट, लेट्स से मार्केट ऊपर गया, ओके, मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। Okay. So market will definitely give some sign here, some sign here, some sign here, some sign here that okay, it is likely to fall, it is likely to move up. ठीक है, तो वो रिवर्सल्स अगर हमें पता चलता है, बिकॉज दिस इज अ सप्लाई जोन, राइट। ओके, ये आप मार्केट का सप्लाई जोन है, राइट। ओके, मार्केट का सप्लाई जोन यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर डिमांड जोन है, राइट। फाइन, तो बेसिकली क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पे बनती है कि ये रिवर्सल्स हम पकड़ पाते हैं क्या। ओके, ये रिवर्सल्स पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न का थोड़ा बहुत आइडिया होना। तो देर आर टू वेज ऑफ द कैंडल स्टिक। ओके, कैंडल स्टिक के दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन। ओके, तो हम रिवर्सल्स वाली बात करें। ओके, तो कुछ कैंडल्स बहुत फेमस हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप हो गया। ओके, स्पिनिंग टॉप हो गया, स्पिनिंग टॉप होता है लट्टू, राइट। इस तरीके से दिखेगा वो, बचपन में कभी चलाया होगा लट्टू आप लोगों ने, इसके जैसा होता है। ठीक है, तो ये कैंडल बुलिश ट्रेंड में भी बन सकती है, बेरिश में भी बन सकती है। एनीवे, then we have a kind of a what candle we have is right, Rosie, something looks like this, sometimes looks like this, sometimes looks like this. Okay, sometimes look like this, sometimes look like this. Okay, any of these are all dojis, इनके अलग अलग नाम होते हैं, that is what you can see. Okay, then you have a hammer, generally ऐसा होता है। Fine, inverse hammer, right, ऐसा होता है, depending upon the positioning, right। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, this could be a reversal, मार्केट ऊपर जा रहा है, this could be again a reversal। तो ये दोनों ही कंडीशन में इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, दैट्स द ओनली थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैंडल पैटर्न। तो इतना ज्यादा नाम में कंफ्यूजन करने का जरूरत है। देन वी हैव अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जहां पर हम लोग बुलिश एंगल्फिंग देखते हैं। ओके, देन वी हैव, सो इट शुड बी अप ट्रेंड, देन मार्केट विल फॉल, should be downtrend where we have a bullish engulfing kind of pattern, right? Okay, this is a bearish engulfing, this is a bullish engulfing, right? Okay, so this is what we need to understand. Okay, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, because these candles will help you to find the reversal point. ठीक है, ओके, कुछ और कैंडल्स के नाम होंगे, उनको देख लीजिएगा इसमें। नॉट नेसेसरी टू यू नो एवरीथिंग। कोशिश करिए कि रिवर्सल्स वही कैंडल होती है जिसमें बॉडी का साइज छोटा होता है। ओके, स्मॉल बॉडी साइज विल बेसिकली मेक दैट सेंस कि मार्केट में डायरेक्शन नहीं है। ऑप्शन, दीज ट्रेडर्स वांटेड टू हैव अ डायरेक्शन, बट उन्होंने मार्केट को क्लोज वहीं पे कर दिया जहां पे ओपन किया था, which signifies that they are not sure about the market where it will go. बेसिकली इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा था इन दिस काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म, सो ये ऊपर नहीं जाती हुई दिख रही, व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का मतलब भी यही होता है कि इट विल नॉट गो अप, इट विल बिकम साइडवेज और इट विल फॉल। दैट मेक सेंस, राइट। ठीक है ना, तो ये चीज है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, पिनिंग टॉप और ये कैंडल्स हो गई। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि रिवर्सल पॉइंट्स पे यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल जरूर बनेगा, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ही रिवर्सल कैंडल बनेगा, डोजी या फिर बुलिश एनगल्फिंग, यहीं से आप इनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट। हम प्राइस को ही देख करके ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कैंडल्स का अंदाजा होना चाहिए। लेट्स से डेली ट्रेंड इज बुलिश, तो आपने क्या देखा, मूविंग एवरेज में निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है।
ओके, तो यू आइडेंटिफाइड निफ्टी डेली इज बुलिश, राइट? ओके, अब ये मार्केट यहाँ पर बुलिश है, इसके बाद क्या करना है हमको? सो क्या हुआ, लेट्स से अगर अब मार्केट डेली में बुलिश है तो हमको इंट्राडे ट्रेड बनाना है। तो अब ये चीज क्लियर है कि वी विल ऑलवेज गो एंड क्रिएट टेक अ बाय ट्रेड, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे इसमें। तो लेट्स से मार्केट इज बुलिश, market is moving up, okay, definitely I will not try to sell the market at somewhere here. I'll wait for the market to come down, okay. तो लेट्स से उसने कैंडल बनाया है मेरा यहाँ पे ऐसा, आई नो दैट यहाँ पे एक सपोर्ट भी है मार्केट का, लेट्स से दिस इज सपोर्ट, सपोर्ट पे इसने रिवर्सल बनाया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद बहुत सारे लोग मिस करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि आपका एंट्री पॉइंट इस कैंडल का हाई होता है, ओके, और इसी कैंडल का लो आपका एग्जिट पॉइंट होता है, ओके। अगर मार्केट यहाँ से चल गया, लेट्स से आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, मार्केट यहाँ से ओपन हो, आपने यहाँ पे बाई किया इस पॉइंट पे, एंड वंस मार्केट मूव्स अप, इस रेजिस्टेंस के आसपास में कहीं सेल कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ओके। यहाँ पे अगर ऐसा कोई ट्रेड है, लेट्स से मार्केट यहाँ पे ऊपर आया इस तरीके से, लेट्स से एंड वी हैव अ समथिंग कॉल्ड लेट्स से बेरिश एंगल, ऐसा ट्रेड यहाँ पर बना है, व्हाट आई विल डू, आई विल simply take the entry on the low of this bar, this is my resistance, or this is my exit, right? And this is my entry. Why? Because supply zone में sell हो रहा है, okay, supply zone में sell कर रहे हैं, okay, and we are trying to buy it again back at the support. लॉजिकली ये मैंने आपको क्यों बताया, अगर ट्रेंड बुलिश है तो विल ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर बाय ट्रेड्स ओनली। सेल वाला ट्रेड कब करना है, जब ट्रेंड बेरिश है। ये क्लियर हुआ? तो एंट्री पॉइंट समझ लीजिए कि किसी भी कैंडल का जिस पे सिग्नल आया है, जिस पे रिवर्सल आ रहा है, उसका लो ब्रेक होना या उसका हाई ब्रेक होना इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट। और उसी कैंडल के साथ में आप हाई पे अगर एंट्री, लो पे एंट्री कर रहे हैं तो हाई का स्टॉप लॉस डाल करके एंट्री ले सकते हैं आप, राइट? ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। एग्जिट पॉइंट के दो तरीके होते हैं, राइट? पहली चीज, एग्जिट या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, ओके। कुछ लोग पिवट्स यूज करते हैं इंट्राडे में, ओके, या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जैसे प्रीवियस सपोर्ट है, हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। दैट इज व्हाट इट पीपल डू। समटाइम्स व्हाट यू नीड टू डू इज यू प्ले ऑन द रिस्क रिवॉर्ड, ओके। मार्केट को कभी रिस्क रिवॉर्ड की तरफ से प्ले नहीं करते वैसे, क्योंकि मार्केट इज नॉट मेड टू प्ले रिस्क रिवॉर्ड, ओके। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन राइटर जो होते हैं वो मार्केट में 1:1 रिस्क भी लेकर के चलते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि उनको पता है कि ट्रेड, या नॉर्मल मैं ही अगर ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई ऑलवेज टारगेट रिस्क रिवॉर्ड, राइट? बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रखना पड़ता है, बिकॉज वी इट ओके टू लूज सम ऑफ द ट्रेड्स, बट व्हेन आई गेन आई गेन अ गुड अमाउंट, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा अगर रिवॉर्ड 3 होगा तो आई रेडी टू रेट लूज 1 रुपी, 3:1 या 2:1 के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने 18,000 पे यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को, 18,030 का मेरा स्टॉप लॉस है, राइट? तो 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, एटलीस्ट आई टारगेट 60 रुपीज यहाँ पे। और अगर वो रिस्क रिवॉर्ड के रूल के अंदर नहीं आ रहा मेरे, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, अगर आप ये फिक्स करना चाहते हैं ऐसे तो, राइट? तो अगर 60 रुपीज आएगा तो मैं 17,940 के आसपास इसको बुक कर लूंगा, या फिर मेरा सपोर्ट के आसपास, राइट? ठीक है, ये एक सिंपल सिंपल सा टेक्निक है, छोटा छोटा बहुत बेसिक सा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट हमारा क्लियर हो जाएगा पॉइंट, राइट? ओके, तो ये हमें समझ में आया कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्या होता है, ओके। तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ओके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ फोर्थ पॉइंट, क्या? पोजीशन साइजिंग, ओके। पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करना है। पोजीशन साइजिंग, ओके। पोजीशन साइजिंग पे वैसे कुछ बात करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, डिपेंड्स अपॉन योर
फंड्स अकाउंट, राइट एक्चुअली। तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस को देखते हुए जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू काउंटर द इंट्राडे मार्केट। ओके, पोजिशनल ट्रेड भी किया जाता है इसके अंदर इसमें, बट हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम इंट्राडे ट्रेड बनाते हैं। तो इंट्राडे में इफ यू आर टारगेटिंग 2:1, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली हैव अ गुड क्वांटिटी, राइट, क्योंकि हम छोटा छोटा स्कैल्प कर रहे हैं, बेसिकली इस काइंड ऑफ ऑप्शन स्कैल्पिंग ओनली, राइट। या हम बेसिकली ट्रेड करेंगे ऑप्शन के अंदर। जब हमें कोई ट्रेड मिला, तो हम ट्रेड तो ऑप्शंस के अंदर कर रहे हैं, फ्यूचर्स आई एम नॉट रिकमेंडिंग, राइट, एनी हाउ। तो ऑप्शन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एटीएम मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग ऑप्शन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये है 18, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गिरा इस तरीके से, ट्रेंड वाज बुलिश, एंड यहाँ पे एक डोजी का कैंडल बना। ओके, सो आई विल बाय, लेट्स से दिस इज 18,000 एंड दिस इज 17,980, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है मेरे, एंड आई एम टारगेटिंग दिस थिंग। ये लेवल है लेट्स से 18,100, ठीक है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 100 रुपीज का टारगेट है, 5:1। ओके, अब 100 रुपीज का टारगेट है, तो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू, आई विल बी बाइंग एटीएम ऑप्शन, राइट। जनरली हमें एटीएम ऑप्शन ही बाय करना चाहिए। ओके, बिकॉज जो गामा का इफेक्ट आता है वो हमेशा एटीएम पे ही सबसे ज्यादा आएगा, तो डेल्टा एक्सिलरेट एट एटीएम सबसे ज्यादा। ओके, इसलिए हमें मोस्टली जब हम लॉन्ग ऑप्शन कर रहे हैं, मोस्टली एटीएम ऑप्शन बाय करने से स्लाइटली ओटीएम एक ऑप्शन, राइट। ओके, तो अगर 100 रुपए मिल रहा है, तो एटीएम के हिसाब से मुझे 50 रुपए ही मिलेगा। ओके, क्योंकि डेल्टा 50 होता है, मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ, इसका भी आधा हो जाएगा, कुछ 12-13 रुपए जाएगा, थीटा डीके का इंक्लूड कर ले तो 13 रुपए मान लीजिए इसमें जाएगा, तो वही अप्रोक्सीमेटली इतना ही बन रहा है। जस्ट हाइपोथेटिकल, मैं बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। तो ये मेरा रिवॉर्ड, ये है मेरा इसकी तरीके से। तो अब ये 50 रुपए, अब ये हो सकता है, जरूरी नहीं 100 रुपीज हर बार मिल रहे हैं, कभी हो सकता है 50 रुपए मिल रहा होगा। दैट मीन्स 25-30 रुपीज, 20-30 रुपए से ज्यादा आप कभी ऑप्शन स्कैल्प नहीं कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। अब इतनी मेहनत के लिए जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो यू शुड बी ट्रेडिंग अ गुड क्वांटिटी, तभी वो दिन भर का पैसा बनेगा, राइट। तो नॉट रिकमेंडेड एनी ऑफ द टाइम कि आप हमेशा इतने लॉट करो, बेस्ड ऑन योर पॉकेट। अच्छा खासा अगर अकाउंट साइज है, तो गो फॉर एटलीस्ट इंटरडे के अंदर, एटलीस्ट अगर आप 5 लॉट से करोगे, तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट, राइट। ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, नॉट टू रिकमेंड, बट यस आई हैव डन दिस। तो जब मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया है कभी भी, तो आई, और निफ्टी जब भी करता हूँ या करता था पहले भी, ओके, सो फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग, राइट। ओके, तो हमेशा फोकस जाता था इस चीज के ऊपर कि जब मैं ट्रेड करूं, या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वी आर टारगेटिंग कि हमें 3:30 बजे तक कुछ पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, राइट। तो इवेंचुअली आपको उस चीज के अंदर ये देखना है कि वो दिन भर का 6 घंटे का मेहनत आपको कुछ रिवॉर्ड दे करके जाए, राइट। तो इसलिए एक लॉट करेंगे तो 20-20 रुपए में कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। आई यूज टू ट्रेड लाइक पहले 5-5 लॉट। ओके, देन आई इंक्रीज टू 10 लॉट। ओके, तो 10 लॉट पे मेरा काम हो जाता था। सो व्हाट, अर्लियर जब मैं पहले ट्रेड करता था, निफ्टी का लॉट 75 का था, राइट, अप्रोक्सीमेटली। अभी 50 का हो गया। तो यू कैन जस्ट मैनिपुलेट दैट थिंग इन दैट वे। ओके, 10 लॉट इवन ऑन 500 क्वांटिटी इज गुड, राइट। ओके, या 5 लॉट, तो वो जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से, तो इतना इतना लॉट भी करेंगे, 20-20, 30-30 रुपए भी ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, तो विल गिव यू गुड थिंग। और 12-10-12 रुपए का नुकसान लगेगा, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं जाएगा। ओके, सो यू हैव सम गुड अमाउंट, और नुकसान होगा तो यू नो दिस लॉस। तो हमेशा इस ऑप्शंस में ही ट्रेड करनी है। ओके, तो पोजीशन साइजिंग ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंट्राडे में बढ़ाते घटाते रहना है, यू गो विद द डिफाइंड क्वांटिटी, जितना आप एक ट्रेड में कर रहे हैं उतना ही कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे में आई वुड से कि कुछ लोग मार्टिंगल भी करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को करते हुए, मार्टिंगल प्रिंसिपल होता है। आई विल नॉट रिकमेंड इट, ओके, कभी आप ऐसा करने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, राइट। मार्टिंगल प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हर लॉस के बाद आपकी अगली ट्रेड डबल हो जाएगी, राइट। तो वो बेट अलग हो जाएगी, ये भी एक तरीका होता है पोजीशन साइजिंग का, राइट। ओके, बट नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ओके, बेसिकली यही है कि आपने पहली ट्रेड में मान लीजिए 10 लॉट से ट्रेड किया। ओके, 10 लॉट से ट्रेड किया आपने, 10 रुपए लूज किए, दैट मीन्स यू लॉस्ट 5,000 रुपीज निफ्टी में। ओके,
10 लॉट से ट्रेड किया, 10 रुपए लूज किए, आपने 5,000 लूज किया। ओके, अब अगली ट्रेड जब हम लेंगे तो डबल क्वांटिटी करेंगे। ओके, ठीक है, 20 लॉट करेंगे हम। इसमें भी अगर मैंने लूज किया मान लीजिए फिर से 10 रुपए, तो व्हाट आई डिड एक्चुअली, मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए लूज किया, फिर से नेट में 15,000 लॉस हो गया। अब मैं करूंगा 40 ट्रेड। ओके, इसमें अगर मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे तो व्हाट, हाउ मच आई लर्न, राइट। ये दोनों कवर होता है, राइट। ये होता है मार्टिंगल प्रिंसिपल। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता, बिकॉज आपके ज्यादा ट्रेड गलत हो गए तो यू विल एक्चुअली एंड अप अ ह्यूज लॉस। ओके, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इतना रखिए कि डिफाइंड क्वांटिटी करिए अभी तक। ठीक है, शुरू में डिफाइंड क्वांटिटी ही करिए, 5 लॉट 5 लॉट, 10 लॉट 10 लॉट, या 1 लॉट 1 लॉट, जो भी आपको ठीक लगता है। कुछ भी रिकमेंडेड नहीं कि ऐसा करना चाहिए, इससे करने से बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। नॉट, वॉट एवर सूट्स योर पॉकेट। ओके, बट कीप द क्वांटिटी डिफाइंड फॉर दैट पीरियड, राइट। ओके, दैट इज व्हाट इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा रिस्क। आई विल टेक ऑल द क्वेरीज, एक बार मैं देख लूंगा व्हाट आर द क्वेरीज। मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट पे फाइन। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना कि आपको चाहे इंट्राडे ट्रेड करो चाहे पोजिशनल ट्रेड करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक स्टॉक देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टडी कर रहे हैं क्यूमिंस का। क्यूमिंस का स्टॉक बोलते हैं यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि इट्स अ क्लियर लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। क्यूमिंस ने अपना हाईएस्ट कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट कर दिया, विच मींस इट्स लुक बुलिश। तो यहाँ से 1700 तक का टारगेट, अगला हाईएस्ट कॉल ऑप्शन वही है, तो आई कैन सी दैट इट कैन मूव टू 17,000। ओके, नाउ मेरे लिए सपोर्ट हो सकता है लेट्स से 1600 या 1580, ऐसा कुछ लेवल होगा। तो मेरे लिए यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव एंटिसिपेटेड, और 20-30 रुपए का मेरे पास स्टॉप लॉस है, विच इज गुड। ओके, नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो एंड क्रिएट एनी ऑफ द स्ट्रेटजी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या करता हूँ, आई क्रिएट अ सिंपल स्ट्रेटजी। लेट्स से हमने कॉल बाय कर लिया, तो नहीं समझा। ओके, एटीएम ऑप्शन बाय कर दिया ना। अभी है क्या, मैंने इसमें 28 रुपीज 10 में, इसमें व्हाट आई लूज इज 16,000 रुपीज। मैक्सिमम लॉस मेरा कितना है, 16,000। ओके, अगर एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ, लेट्स से आई फील दैट दिस स्टॉक हैज टू मूव टू 17,000, 1700, राइट। ओके, तो 16,800 का मैक्सिमम लॉस है, 17,000 पहुंचेगा तो आई विल मेक 25,000 एज अ प्रॉफिट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5:1, राइट। ओके, फाइन, तो इस पोजीशन को सेव कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब आई विल डू व्हाट आई विल डू इज, लेट मी जस्ट ऐड अनदर वन। तो architect function, you guys all know, you can use it. So kind of a free tool we have. Okay, so what I did is I created this. अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 1700 का मैं एक ऑप्शन सेल कर देता हूँ। मेरा लॉस कितना है यहाँ पे, 13,000। एंड इफ द मार्केट मूव्स अप आई कैन मेक 34,000 रुपीज। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बना दी, बुल कॉल स्प्रेड। ओके, तो इसमें मेरा लॉस भी कम हो गया, एंड माई आई हैव मैक्सिमाइज आर रिवॉर्ड। 1700 तक आएगा तो भी मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, राइट। 1700 के लेवल तक आई एम अर्निंग 32,000 एज अ प्रॉफिट। सो इवेंचुअली मेरा पैसा ज्यादा बन रहा है यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है। सो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट ट्राई टू रिड्यूस माय लॉस समहाउ यूजिंग द ऑप्शन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट। ओके, फाइन। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है, बट आई डोंट नो व्हाट कुड बी माय डिफाइंड। सो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, बट जैसा स्ट्रेटेजी में मेरे को चाहिए होता है, जैसे ऑप्टिमाइजर को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड हिम दैट मेरा 1700 का इसमें टारगेट है, एंड माई स्टॉप लॉस इज लेट्स से 1590। ना, मेरा टारगेट मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक आ जाना चाहिए 1700। ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेल हिम, टेल दिस ऑप्टिमाइजर कि मेरा रिस्क जो है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट आई डिड इज मैंने प्राइस एक्शन ही ट्रेड किया है। व्हाट आई डिड इज आई जस्ट यूज दी अंडरस्टैंडिंग की स्टॉक बुलिश है,
और उसकी कुछ लेवल्स देख करके मैंने ऊपर आइडेंटिफाई किया कि ऊपर यहाँ से बुलिश हो जाएगा, राइट। नाउ यू सी कि मेरे को इसने 5 स्ट्रेटेजीज दिया है और मैंने इसको ये बताया भी कि मेरा रिस्क जो है वो कभी भी 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बुल कॉल स्प्रेड मैंने भी बनाया था। ना यहाँ पे क्या बता रहा है, इसने क्या बोला, 1640 का कॉल ऑप्शन का 2 लॉट लीजिए और 17,000 का, उसमें आई वॉज लूजिंग 17,000 व्हेन आई वॉज डूइंग इट विद वन लॉट। यहाँ पे इसने मेरे 2 लॉट से करवाया, स्टिल आई एम लूजिंग 16,000 एंड माय प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो लॉस को कम करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज द की, राइट। तो दिस इज हाउ इट विल क्रिएट अ डिफरेंस हमेशा ऑप्शंस के अंदर, राइट, ओके। तो ऑप्शन इज काइंड ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल इन इटसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट, ओके। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने ऊपर बात किया कि जब भी आप इंटरडे ट्रेड बना रहे हो तो यू शुड मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट अर्निंग 2:1, 1:1 भी करोगे तो योर स्ट्राइक रेट शुड इंक्रीज। अब ऐसा होता है कि व्हेन यू आर लेट्स से हैव 3:1 रिस्क रिवॉर्ड, ओके, तो आपका 50-50% अगर स्ट्राइक रेट होगा तो भी चल जाएगा, राइट। अगर आप 5 ट्रेड में 3 रुपए कमाओगे, राइट, और 5 ट्रेड में 5 रुपए खो दोगे, दैट इज स्टिल योर 10 रुपीज प्रॉफिट, राइट। और जैसे से आपका यू you नो know, आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा होगा तो उसके हिसाब से आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क रिवॉर्ड भी, अगर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, 1:1 भी होगा, तो यू विल मेक मनी, राइट। जितना अच्छा करना है यू कैन डू इट, राइट। बट इवन ऑन अ नॉर्मलाइज्ड वे अगर हम बात करें तो अगर आप 50% का भी एक्यूरेसी रेट मेंटेन करते हो, लेट्स से नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई 60, 70, 80% का, ओके, करते होंगे बहुत सारे लोग, बट लेट्स से बहुत बेसिक भी हम मान के चले तो 2:1, 3:1 अगर हम यहाँ पे अपना पैसा निकाल रहे हैं विच इज गुड, अगेन हमारा कभी लॉस में नहीं जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, ओके। तो एक बार जस्ट अ रिवीजन, स्मॉल रिवीजन, एंड देन विल गो फॉर क्वेरीज, राइट, ओके। तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज अ ट्रेंड, राइट। तो प्राइस एक्शन ट्रेड करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ओके। तो इंडिकेटर्स की हमने कुछ कुछ बात करी थी। मूविंग एवरेज से आप बड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। इनसे आप एक मार्केट का सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। आई एम नॉट आस्किंग टू टेक अ ट्रेड ऑन देम, राइट, बट टू हैव अ पिक्चर इन माय माइंड, ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मार्केट ऐसे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बिल्टअप आप देख सकते हो, ओके। कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्टअप आप देख सकते हो, दैट इज वन थिंग। पीसीआर मैंने बताया था, पीसीआर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है विद दैट मार्केट, ओके, दैट इज वन थिंग, ठीक है। इंडिया विक्स देख सकते हो, राइट। सेकंड थिंग हमने बात किया रिवर्सल्स के बारे में। तो रिवर्सल्स के लिए हमें कैंडलस्टिक्स यूज करना चाहिए। इवन दो द बिगर ट्रेंड इज बुलिश, तो विल लेट्स से अगर मार्केट में हमने मूविंग एवरेज से देखा, स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब कल से जैसे निफ्टी अगर बुलिश है तो हम क्या करेंगे, जब जब मार्केट करेक्शन करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, हमें रिवर्सल्स ढूंढना है। रिवर्सल कैसे ढूंढेंगे हम लोग, कैंडलस्टिक्स के थ्रू। तो जो हमने कुछ कैंडलस्टिक्स से बात की, स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैमर एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, वो चीज आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देन आई टॉक्ड अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑल्सो। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सटीक होना चाहिए। तो वो रिवर्सल कैंडल्स ही आपको यू नो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट देती है। तो जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है एंड ट्रेंड इज बुलिश, तो नीचे गिरेगा, जहां से भी रिवर्स करेगा इट विल गिव यू सम रिवर्सल कैंडल्स। तो वो रिवर्सल कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है देन यू विल गो एंड बाय द ट्रेड, ओके। उसका लो ही हमारा उस एरिया में सबसे जो लोवेस्ट लो होगा, उस ट्रेंड में फॉलो होने के बाद, ट्रेंड फॉल होने के बाद मार्केट नीचे गिरा, फिर उसका रिवर्सल बनाया, 3-4 कैंडल का रिवर्सल बनाया लेट से, तो वहां से अगर वो घूम गया, इट्स काइंड ऑफ अ दैट लो इज द योर स्टॉप लॉस एनी हाउ एग्जिट, राइट, फाइन। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने बात किया कि अदर इधर वी यूज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और रिस्क रिवॉर्ड हम 3:1, 2:1 मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। देन वी टॉक्ड अबाउट द पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एज आई टॉक्ड अबाउट कि हमें फिक्स रखना चाहिए इंट्राडे में। पीपल यूज मतलब डबल डबल क्वांटिटी करके भी ट्रेड करते हैं ऑन एन एवरी ट्रेड, राइट, ओके। बट फॉर दैट वी नीड टू हैव अ वेरी हाई वेरी हाई कैपिटल एक्चुअली, राइट। तो उतना सरप्लस होता नहीं है सबके पास, ओके। तो पोजीशन साइजिंग अगर आप मेंटेन भी करते हैं इंट्राडे में, ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड करेंगे, 4 ट्रेड करेंगे, तो इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 20-20 पॉइंट्स अगर आप प्रॉफिट स्कैल्प कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो गुड,
देन वी टॉक्ड अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, राइट? और मार्टिनल के बारे में भी बात किया, तो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी, बट दैट इज नॉट सो प्रैक्टिकल वर्क, ओके? कभी ट्राई भी मत करना, इट्स वेरी रिस्की, राइट? ओके, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस आर इन इटसेल्फ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, राइट? ओके, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बना करके दिखाया था, ये वाला ह्यूमंस का, मैंने खुद बनाया एक स्ट्रेटेजी, ओके, लॉन्ग और बुल कॉल स्प्रेड में। फिर ऑप्टिमाइजर से पूछा कि मेरा व्यू को ही ट्रेड करने के लिए डू यू हैव द एनी अदर स्ट्रेटेजी, और उसको बोला भी कि मेरा इतना नुकसान हो सकता है। देन इट गेव मी, राइट? उसने मेरे को बताया कि पहले भी आप 17,000 का नुकसान कर रहे थे, यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टिल लूज द सेम अमाउंट, बट यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न इफ योर फोरकास्ट गोज राइट, यू विल मेक मनी इन दिस, बट यू नीड टू ट्रेड 16, 14, 1700 कॉल ऑप्शन and two lots you need to trade. So eventually I'm doing that thing, right? Okay, so that is it, you know, that is what it means. Okay, so let me just see some queries. Okay, if you have, just give me a second. You have, okay, so which queries have, okay, so okay, so any indicator for momentum. Okay, मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली यही है कि सो उसके लिए आपको ब्रेकआउट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो इट्स सिंपल, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस एक्शंस, तो ब्रेकआउट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके फाइन सर, व्हाट अबाउट वोलेटाइल मार्केट वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रबल एवरी टाइम? ओके, सी volatility is in itself a very big topic to talk about. Okay, so yes, what happens is whenever you have a volatile market, your range increases, right? आपका रेंज वैसे ही बड़ा हो जाता है इसके। ओके, सो you need to understand that, okay, whenever there is a high volatility environment, market में अपने आप आपको, you know, you will have a very, you know, kind of a big swings, right? Okay, fine. So that is what, you know, you need to understand. Okay, so just that's the simple thing. Okay, so whenever you have a this kind of problem, तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि, ओके, आई टेल यू। ओके, सो बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2:1 या 3:1 अगर आप मेंटेन कर पाते हो, ओके, और साइमल्टेनियसली यू नो दैट कि इवन इफ माय यू नो माय रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन माय फेवर, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इवन इफ यू आर लाइक 50-50% ऑफ द टाइम, राइट, तो आपका आप स्टिल यू विल मेक मनी इन दिस, राइट? ओके, व्हाट अबाउट द स्टॉप लॉस हंटर? तो कुलवंत जी, स्टॉप लॉस हंटिंग का तो गेम हमेशा ही रहता है मार्केट में। ओके, यू डिफाइन योर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड टेक द एग्जिट। आप, ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, दैट कैन हैपन। ओके, मेरा भी होता है, सबका होता है, बट इट्स नॉट दैट, डोंट कीप दैट इन माइंड कि मेरा स्टॉप लॉस हर बार हिट होता है, कीप ऑन हैपनिंग, राइट? ओके, सो इन फैक्ट वी आर क्रिएटिंग दैट मिथ जो हमारे माइंड में है, उसको हम रियलिटी बनाते रहते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट इट मींस। ओके, तो उसको रियलिटी मत बनने दीजिए अपनी लाइफ में। ओके फाइन। How much average capital required to create bull call spread and bear put spread? So you can see that eventually यहाँ पर आपको मार्जिन बताएगा कि bull call spread बनाने में कितना, ये जैसे यहाँ पे इसने मेरे को बोला है रवि शंकर जी, राइट? ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज द अप्रोक्सीमेट मार्जिन दैट यू नीड फॉर यू नो दिस 2 lots bull call spread, right? Okay, that is what it means. Vaibhav ji, you can we add ADX with order and trade? Order and trade को use, order and trade is one of the again a very good tool, you know, for intraday kind of a trades, right? Okay, so अगर आप जैसे आज का ही मूव देखेंगे, so I have created one trade in architect today, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। See again that I used from the basis of that that perspective only, right? Okay, so इस पे भी मैं इस तरीके से सेटअप बना देता हूँ। सो सी अगेन आई यूज द सेम वे दैट आई एम टीचिंग, राइट? तो मैंने 20 पीरियड का वहां भी मूविंग एवरेज प्लॉट किया था, यहाँ भी मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज अराउंड 2, अगर आप 2 बजे के आसपास देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा स्पाइक आया था यहाँ पे। ओके फाइन, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दैट वी हैव समवेयर हियर। ओके, सी दिस। ओके, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट है। ओके, दिस इज अ ब्रेकआउट समवेयर हियर, राइट? ओके, एंड 2:03 के आसपास यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया है,
Okay, दिखाता हूँ मैं. Okay. So that we have created a trade, and if you see throughout the day market was, after this market moving average के नीचे close ही नहीं हुआ, right? So अब इसका अगर मैं ट्रेड दिखाऊं आपको आर्किटेक्ट में, जो मैंने आज सुबह क्रिएट किया था, दिस लॉन्ग कॉल, ओके, दैट आई क्रिएटेड, सी 2 बजे ही एग्जैक्टली बनाया है मैंने इसको, जो ब्रेकआउट आया था, राइट? ओके, उस टाइम पे बनाया था, 5 लॉट थे, 75 रुपए का, 45 रुपए का, 17,950 का कॉल ऑप्शन चल रहा था. इट क्लोज इट अराउंड 82 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट डबल, राइट? तो ये आप इसमें मूव देख सकते हो. तो दिस वाज टोटली क्रिएटेड ऑन दैट बेसिस ओनली, राइट? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस, और कुछ नहीं. ठीक है, तो आप उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ऑर्डर बुक के साथ. एडेक्स ऑर्डर बुक अपने आप में ही एक सफिशिएंट टूल है, राइट? ओके, दैट इज व्हाट इट मींस. ओके, फाइन. तो that's the thing. Okay, तो जो लोग एप्लीकेशन में, you guys are, if you are have access to the application, you can do whatever experiment you need to do. Okay, नहीं तो जिन लोग के पास एप्लीकेशन नहीं है, you guys can use YTUBE as to get a 2 days pro access. Okay, and you can use it, right? Okay, so see that ये एप्लीकेशन आपके काम का है, as a trader, right? आप कितना यूज कर सकते हैं इसको. You can simply use that, and if you feel that yes, कि आपके लिए एप्लीकेशन काम का है, तो then you can go for a, the yearly subscriptions. Okay, and which will eventually open a gate for you to enter into the derivative market. यहाँ पे आप बहुत सारे tools को access कर सकते हो, right? Okay, and even though, you can eventually increase your market for the understanding, right? Okay, तो एनालिसिस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. ओके, so you should have just a clear picture that what you need to do, and then you can do it. Okay, so that's all. Okay, so probably so that's all from my side, guys. Okay, thank you so much for joining this session. Okay, it's almost 1 hour now. Okay, and further if you have any query, just you can mail us at support@quantshop.com, and probably I'll see you again, right? Okay, so it's good to be back again after so long, right? Okay, I'll try to be, get in touch with you again, guys. Okay, so see you guys. Thank you so much. Bye and take care.